Hello, my dear students, my viewers. Welcome to your channel Smart Click Teachings. So today's topic is budget 2025 to 2026. So we will going to discuss about the budget sessions. Okay. So don't waste the time. Let me start. And you can see this is my home page. Okay. And this is my logo Smart Click Teachings, and you can see also my banners. So my request, please make to like, subscribe and share my videos as soon as possible fast. It will be very grateful for you and for me for our future. Okay, so now we just come back and let me start our topic. So you can see in display board all students, economics students and my viewers, you can see India budget 2025 to 2026, right? So what is special about it? Union Minister of Finance and Corporate Affairs. So who is our Union Minister of Finance? Who is our Union Minister of Finance and Corporate Affairs? Srimati Nirmala Sitharaman ji, okay, who represents on February our budget 2025 and 2026. Okay, this is a time period in parliament, as you know, and you can see also in TV. So what is the special about it? The special is that together we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity. तो मतलब यहाँ पे ये बात बोली है, एम्बार्क यानी एक प्रारंभ कर रहे हैं ये लोग एक जर्नी, किस चीज़ की जर्नी? नेशंस ट्रिमेंडियस, यानी जो अद्भुत, जो हमारे देश के जो पोटेंशियल है, पावर है, ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है ये हमारी महान, उसके लिए हमारा बजट कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और जो ये ग्लोबलाइजेशन के लीडरशिप जो कर रहे हैं हमारे, और जिनकी अध्यक्षता में किया जा रहा है, वो है हमारे, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वर्ल्ड फेमस पर्सन। ओके, तो अब आगे देखते हैं व्हाट इज अबाउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर presented the union budget 2025 to 26 with the theme, yani main aim is that sabka vikas, as committed by the Prime Minister Modi, and stimulating balanced growth of all regions. So overall all India's regions, sabka vikas is main target and main aims under this budget. Okay, so what is the highlights for this budget? So first of all, zero poverty. Okay, focus on zero poverty. We remove the poverty line and make to above from BPL, below poverty lines. First aim. Second, 100% good quality schools education. So as we know, at the present scenario, it is must education for all the children. So good quality school education is must, as the 21st century is going on. So that is important. Okay, access to high quality, affordable and comprehensive health care. So also the third point is that high quality जो हेल्थ केयर होना चाहिए। ओके, ये इसमें थर्ड पॉइंट में रखा गया है, यानी हाई क्वालिटी के सबको ट्रीटमेंट मिले, हेल्थ केयर सेंटर हो। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ 100% स्किल्ड लेबर, यानी जो लेबर होनी चाहिए वो हमारी स्किल्ड होनी चाहिए, अनस्किल्ड नहीं होनी चाहिए, और उनको रोज़गार मिल सके उनके हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से। दैट इज़ अ फोर्थ पॉइंट फोकस किया गया इसमें। 70% वुमेन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट
देखिए इसमें जो बताया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वुमेंस की पावर को बढ़ाया जाए, यानी 70% उनका टारगेट लक्ष्य है इस बजट में, यानी वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल प्रोवाइड कराई जाएगी जो भी अवेलेबल हो सके। फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए फार्मर्स, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, एज वी नो, हम सब जानते ही हैं कृषि प्रधान देश है, तो फार्मर्स को हमें फूड बास्केट बनाना है, मतलब जो उनकी स्किल है, कृषि प्रधानता क्योंकि देश है, तो उनकी स्किल को डेवलप किया जाए और अनाज के भंडारों को मजबूत किया जा सके वर्ल्ड लेवल पर, यानी एक्सपोर्टर बन सके हम लोग। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट द इकोनॉमिक्स पॉइंट्स। तो जो हम बात कर रहे हैं एज आवर ऑब्जर्वेशंस 2025 to 26 the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated। तो जो एस्टिमेट किया है बोरोइंग्स, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर वो रेस्पेक्टिवली क्या है, 34.96 लाख करोड़ रिसिप्ट्स प्राप्त हो रहे हैं और 50.65 लाख करोड़ क्या प्राप्त हो रहे हैं हमें, एक्सपेंडिचर है जो हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मतलब एक्सपेंडिचर की वैल्यू है। तो दोनों को हम ये देख सकते हैं कि टोटल जो रिसिप्ट्स हैं वो बोरोइंग्स की जो रिसिप्ट्स हैं वो हमारी 34.96 लाख करोड़ हैं और जो एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट किया गया है वो 50.65 लाख करोड़ किया है रेस्पेक्टिवली, राइट। और जो नेट टैक्स रिसिप्ट्स की बात है उसका एस्टिमेट जो किया है या अवलोकन किया है वो है 28.37 लाख करोड़। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, फिजिकल डेफिसिट जो घाटे के बजट है उसका जो अनुमान लगाया है वो जीडीपी का 4.4% का अनुमान लगा हुआ है। ओके, ये 2025-26 का जो सेशन का जो बजट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। द ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स एस्टिमेटेड, यानी जो ग्रॉस मार्केट का बोरोइंग्स जो एस्टिमेट किया गया है वो 14.82 लाख करोड़ है। और कैपेक्स एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर रहे हैं, ओके, तो 11.21 लाख करोड़, जो आपका जीडीपी का 3.1 है जीडीपी का, तो ये एम्बार्क किया है, यानी फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा 25-26 में। कैपेक्स एक्सपेंडिचर क्या है, यानी कैपिटल में जो एक्सपेंडिचर किया जाता है या एक्सपेंस होता है, यानी जो कंपनीज है जो अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए कैपिटल पर इन्वेस्ट करती हैं, तो उसमें एक्सपेंडिचर का जो अनुमान है वो 3.1 टोटल जीडीपी का ही लगा हुआ है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या फोकस किया है। तो देखिए एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट। तो जो एग्रीकल्चर है वो फर्स्ट इंजन है, यानी किसी भी देश का जो एग्रीकल्चर होता है वो फर्स्ट इंजन होता है, राइट, यानी उसका मेन पिलर है वो डेवलपमेंट का, विकास का जो मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना जो को डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम्स, यानी जो डेवलपिंग है वो मतलब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना को लागू किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एग्री से संबंधित होगा, राइट, डेवलप करने के लिए। बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी यानी जो ग्रामीण लोगों में, मतलब एक्चुअली देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जॉब्स की बहुत कम मतलब वो होती है, जॉब्स ज़रा कम अवेलेबल हो पाते हैं, प्रोवाइड हो पाते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली ध्यान दिया गया है, क्योंकि देखिए लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं, राइट, तो वो ये चीज़ ना हो, तो इसके लिए उन्होंने जॉब्स अपॉर्चुनिटी गांव में ही देने का प्रयास किया है। वहाँ पे उनको छोटे रोजगार जो स्मॉल जो व्यापार कर सकें उसके लिए जो फैसिलिटी अवेल करवा सके। फार्मर जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए हेल्प जो हो सके, लैंडलेस यानी जिनके पास भूमि नहीं है, भट्टे पर जो काम करने वाले जो फार्मर्स हैं वो यूथ्स में वुमेंस और बॉयज़ दोनों शामिल हैं, तो ये इन सबको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके, राइट, या उनका जो भी रोज़गार खुल सके, तो इस पर ध्यान दिया है। यानी बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रॉस्पेरिटी समृद्धि को विकसित किया जा सके। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, यानी अनाज पर आत्मनिर्भर बन सके हम, इस पर भी फोकस कर रहे हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंटों पर इस बार जो डिस्कस किया गया। तो बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस,
तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राइट। अब आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की बात कर रहे हैं, तो अनाज पर हम अपना आत्मनिर्भर बन सके, मोटे अनाजों पर। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाए जाएँ वेजिटेबल्स की, नई नई टेक्निक से हम फ्रूट्स एंड फल को किस तरीके से और वो कर सकते हैं, प्रोडक्ट उनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और माखन बोर्ड इन बिहार, तो माखन बोर्ड इन बिहार का जो साइंस है, ये देखिए मैंने येलो कर रखा है, ये आपको समझाने के लिए मैंने स्पेशली किया है। जो कुछ कंटेंट जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं उसको मैं समझा रहा हूँ, राइट। और देखिए माखन बोर्ड इन बिहार का मतलब है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट कर सकें, उत्पादन में किस तरीके से हम उसको इम्प्रूवाइज करके हम उसको बढ़ा सकें। तो ये बिहार में जो बोर्ड है तो उसके लिए फोकस की गई है इस बजट पर। नेशनल मिशन ऑन हाईवे यार्ड सीड्स यानी जो भी बीज हैं उपलब्ध हो सके, अच्छे हाइब्रिड ग्रेड के बीज, राइट। फिशरीज यानी मत्स्य जो पालन है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ओके। और इसके बाद मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कपास की प्रोडक्टिविटी को अच्छा और अच्छी क्वालिटी का हम बना सके और उसको और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट थ्रू KCC, किसान क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ सकें, फार्मर्स को उनसे जोड़ सकें। यूरिया प्लांट इन आसाम, तो जो यूरिया प्लांट है आसाम में उसको इम्प्रोवाइज कर सकें, राइट। ये है बात। अब देखिए सेकंड इंजन जो है वो आपका आता है MSME। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MSME? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इट मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी जो छोटे कुटीर उद्योग हैं वो हमारे से क्या है, सेकंड पार्ट होते हैं डेवलपमेंट के, यानी सेकंड इंजन है, राइट, जो एक बूम या बूस्ट इकोनॉमी को ग्रोथ देते हैं। तो रिवीजन इन द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर MSME, राइट। तो क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस को क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड हो सके, फंड्स अवेलेबल करवा सकें स्टार्टअप्स के लिए। देखिए आजकल आपने सुना होगा अभी पिछले लास्ट ईयर्स प्रीवियस ईयर में कि स्टार्टअप बहुत बच्चों ने यूथ्स ने स्टार्टअप नए नए शुरू करे हैं, तो उनके लिए फंड्स को मुहैया कराया। ईजीनेस काफ़ी मतलब ईजीनेस तरीके से, और स्टार्टअप काफ़ी लगे हैं, तो ये भी इस पर भी ध्यान देना है। स्कीम्स फॉर फर्स्ट टाइम इंटरप्राइजेज, यानी जो पहली टाइम इंटरप्राइजेस को कर रहे हैं उनके लिए स्कीम्स बनाना, नई नई स्कीम्स बनाना और प्रोवाइड कराना, राइट। इसके बाद फोकस प्रोडक्टिविटी एंड आपका है स्कीम फॉर फुटवेयर लीदर सेक्टर्स, राइट। तो इसमें प्रोडक्टिविटी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, फोकस किस पर किया गया, फुटवेयर लेदर जो सेक्टर्स पर है। ये सब देखिए किस में आते हैं, ये MSME के सेक्टर में आते हैं ये बिजनेस, तो इन पर भी ध्यान देना है। फुटवेयर एंड लीदर सेक्टर्स पर। मेजर्स फॉर टॉय सेक्टर्स, तो जो माटी के खिलौने जो बनाने वाले हैं तो उन, और जो प्लास्टिक मतलब छोटे जो भी उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उन पर ध्यान देना है। यानी माटी के खिलौनों का देखो अब हमारा चलन ही ख़त्म हो गया, तो उन पर भी हम ध्यान दे सकते हैं, तो उन सेक्टर्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, सपोर्ट कर रहे हैं किसको, फूड प्रोसेसिंग पर सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छे प्लान्स प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, उन पर ध्यान देना है। मैन्युफैक्चरिंग मिशंस फॉरदिंग मेक इन इंडिया, यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा मिशन है, क्या टारगेट है हमारा, मेक इन इंडिया। अभी तक भी आप लोगों ने बस वो मेड इन चाइना सुना होगा, लेकिन हमारा जो पहचान है भारत की, जो एंशिएंट टाइम से हम लोग पूरे एशिया में हम लोग अपना एक पहचान हुआ करती थी हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो उसी को ही हमें अपनी प्रॉस्पेरिटी को वापस लाना, तो मेक इन इंडिया पर ध्यान दिया जा रहा है। ये सब जो फोकस है, जो कंटेंट के पीछे जो एम है वो ये है, राइट, मेक इन इंडिया का एक पहचान बन सके ऑल ओवर द वर्ल्ड। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, ये है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए बिना इन्वेस्टमेंट के तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इन्वेस्टमेंट हमारा ये थर्ड इंजन है डेवलपमेंट का। तो इन्वेस्टिंग इन द पीपल, लोग, तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, यानी जो ऑलरेडी जो आंगनवाड़ी की जो योजना चल रही है पोषण 2.0, उसको फिर से एक नई तरीके से उसमें जो भी कमियां उसको फिर से रिनोवेट करके, उसको रिफॉर्म करके उसको फिर से लागू मतलब उसको और आगे बढ़ाएं। अटल
टिंगरिंग लैब्स। अब देखिए ये क्या है, अडल्ट टिंगरिंग लैब्स। अडल्ट टिंगरिंग लैब का मतलब है जो आजकल जो स्कूल्स हैं हमारे, वो उन्हें हाईटेक हमें करना है, राइट। यानी तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, साइंस ग्रुप के बच्चे हैं जो उसमें स्टूडेंट्स हैं, उनको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रोवाइड हो सकते हैं, उनको एजुकेशन में उनको लगाना, उनको प्रोवाइड कराना, एजुकेशन किट्स इलेक्ट्रॉनिक किट्स प्रोवाइड कराना, 3D संबंधित स्मार्ट क्लासेस, तो उनको सबको हाईटेक करना है। तो ये अटल टिंगरिंग लैब्स का ये मतलब हर स्कूल में ये लागू या उसे ऐड करने में लगी हुई है ये मोदी सरकार, राइट। यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा, टेक्नोलॉजिकल शिक्षा मिल सके। साथ में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स, राइट। एंड PHC का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो देखो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स, तो जो गवर्नमेंट के सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको कनेक्ट करना है। किससे करना है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट से। उसका देखिए रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अभी आपने एक एक्सपीरियंस लिया होगा आप सभी लोगों ने कोरोना का। तो कोरोना टाइम में देखिए इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो कितनी काम आई। घर बैठे हम लोगों ने, हमारी स्टडी नहीं रुकी, जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते रहे और जो बच्चे हैं वो पढ़ते रहे, राइट। और भी जो एक्टिविटीज़ है वो कर सके हम। और अगर कुछ हेल्थ की इशू है तो लोगों ने ऑनलाइन उस चीज़ को, इस फैसिलिटी को लेकर के आराम से उसको फैसिलिटी का फ़ायदा उठाया। तो इसी तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खुले जो कनेक्ट करें सभी सेकेंडरी स्कूलों को, राइट। या जो गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन में वो रहे सारे स्कूल्स। तो ये भी एक अच्छा प्लान है उन्होंने सोचा है, लगाया है। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी जो पुस्तकें भारतीय भाषा में लिखी जा रही हैं उसके लिए कुछ अच्छी अच्छी योजनाएँ, स्कीम्स चलाई जाएंगी, उन्हें प्रोत्साहन किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल्स, तो जो नेशनल सेंटर्स खोले जाएंगे एक्सीलेंस मतलब स्किल को डेवलप करने के लिए नेशनल लेवल पर। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन IIT, तो IIT के जो स्टूडेंट्स हैं उनको और उनकी कैपेसिटी को एक्सपेंस किया जाएगा, यानी वो और अच्छे तरीके से अपने वर्कआउट को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी स्टडी को और इम्प्रोवाइज कर सके, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन, देखिए AI का टाइम है इस समय, तो AI स्कूल में लगाना जरूरी है। तो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन, राइट। आगे एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो वो भी इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आगे देखिए आपका है डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डे केयर सेंटर्स यानी कैंसर के जितने भी जो सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट पर अवेलेबल हो सके, राइट। ये भी प्लान है। आगे देखिए स्ट्रेंथनिंग अर्बन लिवलीहुड्स, यानी जो अर्बन एरिया में है उनके जीविकोपार्जन यानी जीवन का साधन जो है, जीवन चलाने का जो साधन है उसमें उनकी स्टेमिना बढ़ सके, राइट। इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, राइट, तो इस योजना पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जो छोटे छोटे जो हमारे वेंडर्स हैं उनको फंड्स प्रोवाइड हो सके। सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी सुरक्षा कुछ मिल सके, उनके लिए स्कीम है। आगे आपका देखिए इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी, अब बात कर रहे हैं हम किन पॉइंट्स पर इकोनॉमी पर इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट का फोकस किया जा रहा है 25-26 में। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप को मजबूत किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, राइट। सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी स्टेट्स को, यानी जो थोड़े गरीब मतलब अनडेवलप्ड जो थोड़े स्टेट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट हो सके, सपोर्ट किया जा सके, राइट। यानी जो स्टेट्स थोड़ा अनडेवलप्ड हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, उनके लिए सपोर्ट करना है। इन्वेस्टमेंट एज द थर्ड इंजन के रूप में क्या ये डेवलपमेंट का ये पिलर है। तो इन्वेस्टिंग इन पीपल और आपका सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण जो ऑलरेडी स्कीम चल रही है 2.0, उस पर
जो भी कुछ कमियाँ उसको पूरी करने के लिए और आगे ध्यान देना। अटल टिंकरिंग्स लैब्स, यानी जो बच्चों को न्यू गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी हर स्कूल लेवल पर ये लैब्स को मतलब वो करा जाएगा। जो भी मतलब लैब्स हैं, नए नए स्कूल्स जो भी हैं या पुराने स्कूल्स हैं, उन स्कूलों को उनसे जोड़ा जाएगा, लैब्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और लैब्स में मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, 3D, ये सारी मतलब जितनी भी नई जानकारी हैं बच्चों को टेक्नोलॉजी को संबंधित, वो उनको प्रोवाइड हो सके, उसके रिगार्डिंग किट्स प्रोवाइड हो सके। तो अटल टिंकरिंग्स लैब्स को ऐड किया जा रहा है, इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आगे आने वाला समय AI टूल का ज़माना है। तो इसलिए हाई टेक्नोलॉजी से बच्चों को ज़रूर मतलब टच में रखना है। आपका ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, यानी जितने भी एडुकॉम क्लासेज, स्मार्ट क्लासेज हैं, तो उससे कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, राइट। क्योंकि देखिए फ्यूचर में ये इसलिए किया गया है, देखिए फ्यूचर में जैसे अभी हम लोग एक कोरोना, आपको मालूम ही है, इस बीमारी से लोग पूरा वर्ल्ड ही इससे गुजरा है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोगों ने क्लासेस ऑनलाइन पढ़ी थी, ओके। तो इसलिए हर स्कूल को कनेक्टिविटी ज़रूरी है, तो उस कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को इम्प्रोवाइज़ करना है, राइट। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, तो भारतीय भाषा में जो पुस्तक स्कीम्स है, यानी जो भी बुक्स जो भारतीय भाषा में है, उसके लिए थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ कर सकें, उस पर ध्यान देना है अपनी भारतीय भाषा, मातृभाषाओं पर। नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल्स, तो नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल्स यानी अच्छी स्किलिंग के लिए नेशनल सेंटर्स पर ध्यान दिया गया है। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन IIT सेक्टर पर उसको और एक्सपेंड करना, यानी और बृहद रूप से उसको मतलब उसकी और ब्रांचेस खोलनी हो, या उसके ही उसमें ही और आगे अच्छा इम्प्रोवाइजेशन कैसे किया जा सकता है, इस पर ध्यान देना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन, देखिए जैसे कि अभी मैंने बोला था AI टूल का ज़माना है, तो एजुकेशन में AI को लगाना भी ज़रूरी है, तो सेंटर रूप से इसको भी ऐड करना है। और उसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाया है इस बजट में, इसमें भी फोकस करना है सरकार को। ऐसा इसमें मेंशन जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, जो हमारे जो 2025-26 के बजट में है। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो देखिए जैसे कि भारत की जो जनसंख्या है और जो विश्व की जनसंख्या ऑलरेडी बढ़ी रही है, तो उसमें बीमारियां भी बढ़ रही हैं, तो मेडिकल एजुकेशन की बहुत प्रायोरिटी है, तो उसमें भी थोड़ा आगे बढ़ सके। डे केयर कैंसर सेंटर्स हो सके, यानी हर डिस्ट्रिक्ट पर आपका कैंसर सेंटर्स हो, ये भी है। स्ट्रेंथनिंग अर्बन लिवलीहुड्स, यानी जो जीविका उपार्जन हो सके अर्बन एरिया में वो। और ये आपका प्रधानमंत्री आपका ये है जो वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है जो, राइट, ये। और इसके बाद इसमें भी ध्यान देना है। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर है उसमें वेलफेयर ऑफ आउटलाइन, यानी एक जो प्लेटफॉर्म है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत जो आता है, उसमें जो वर्कर्स हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, यानी ऐसी स्कीम्स लागू करिए जिसमें वेलफेयर यानी कल्याण हो सके कुछ प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, राइट। और आगे देखिए इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी, अब देखिए क्या क्या इन्वेस्टिंग क्या बात आ रही है। तो देखिए जो इस 25-26 का जो बजट है उसमें क्या क्या इन्वेस्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट जो पार्टनरशिप है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो ज़रूरी है, दोनों सरकारी और गैर सरकारी दोनों मिलकर के काम करें। सपोर्ट टू स्टेट्स, यानी जो गरीब जो मतलब अनडेवलप्ड है ज़्यादा स्टेट्स, उन पर ज़्यादा ध्यान दें इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये भी है। एसेस्ड मोनेटाइजेशन प्लान 25 से लेकर 30 तक का जो प्लान है उसमें मोनेटाइज कर सकें एसेस्ट, यानी जो भी उसमें सोर्सेज हैं उनको हम यूज़ करके अच्छा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकें। जल जीवन यानी सबको शुद्ध अच्छा पानी पिला सकें, तो उसके लिए जल जीवन मिशन पर काम चल रहा है। अर्बन चैलेंज फंड, अर्बन एरिया में आप मतलब फंड की जो भी चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको कम किया जा सके। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, तो देखिए जैसे जैसे विकसित हम हो रहे हैं तो हमें एटॉमिक पावर भी हमारा होना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर भी कार्य हो रहा है, इस पर ध्यान इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और शिप बिल्डिंग आपका, यानी जो शिप अपने ही मतलब जो शिप्स हैं अपने यहाँ मैन्युफैक्चर हो सके। और मैरिन टाइम डेवलपमेंट फंड
आपका उड़ान यानी कनेक्टिविटी हो सके, एयरलाइंस ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो सके, एक रीजन यानी इंटर रीजन्स में आराम से लोग सफ़र कर सकें। एयरवेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें उड़ान योजना के अंतर्गत आ रहा है ये। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन बिहार, राइट। और आपका वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट एंड मिथिलांचल, और आपका माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, और आपका माइनिंग सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स हो सके ऑलरेडी जहाँ पे हमारी माइनिंग सेक्टर्स चल रहे हैं उन जगहों पे, ओके। और आपका ये है स्वामी फंड 2, तो स्वामी फंड 2 पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और आपका टूरिज़्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लीड ग्रोथ, यानी जो टूरिज़्म सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयमेंट है उसको भी लीड किया जा रहा है, यानी बढ़ाने की ऐसा विचार किया जा रहा है कि उसमें भी ग्रोथ हो सके, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है। यानी हेरिटेज भी इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया गया है हेरिटेज में। और आपका इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन की बात कर रहे हैं अगर इन्वेस्ट, तो देखिए इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, डीप टेक फंड्स एंड प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जेनी बैंक फॉर कॉरपोरेशन, जर्म प्लाज्म, नेशनल जियोस्पेशियल मिशन एंड ज्ञान भारतम मिशन। तो नेशनल जियोस्पेशियल मिशन एंड ज्ञान भारतम मिशन, राइट, इन पर भी ध्यान दिया गया है। एक्सपोर्ट एज द फोर्थ इंजन, आप देखिए एक्सपोर्ट भी डेवलपमेंट का एक इंजन है, यानी फोर्थ पार्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी हम अगर नहीं करेंगे तो जो फॉरेन करेंसी है वो थोड़ी हमारे कम हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दिया गया है। तो किन किन चीज़ पर ध्यान दिया है एक्सपोर्ट पे, तो किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया एक्सपोर्ट पर, देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, भारत ट्रेड नेट, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC, राइट, यानी ये जो गल्फ कंट्री हैं उनको एक फ्रेमवर्क यानी नेशनल फ्रेमवर्क पर जोड़ना, गल्फ कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सके, जहाँ पे हम भारत ट्रेड नेट है, आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, ये सब एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग डेवलपमेंट हम कर सकें, तो इन पॉइंट्स पर भी ध्यान दिया गया है। अब बात आती है रिफॉर्म्स की, एज फ्यूल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल सेक्टर पर हम किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं, जैसे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें इंश्योरेंस सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है, और क्रेडिट इन्हेंसमेंट फैसिलिटी बाय नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ओके। तो इस बैंक के माध्यम से क्रेडिट की फैसिलिटी मिल सके। और ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, पेंशन सेक्टर्स पर ध्यान दे रहे हैं, यानी जितने भी हमारे वृद्ध लोग जो हैं, वृद्ध यानी सीनियर सिटीजन्स, उनको पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, उनको इलाज मुहैया अच्छा हो सके, पेंशन अच्छी उनको मिल सके, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है इस गवर्नमेंट के इस बजट के द्वारा। और हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेशन रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स और जन विकास बिल 2.0। तो देखिए जो रिफॉर्मेशन है, जो ऑलरेडी ये तो चल ही रहे हैं ये प्रोग्राम्स, तो इन पर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, यानी उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है जहाँ पे कमियाँ रह गई है, राइट। मैं फिर से ओके